Hello. So let's start with the series of interview preparation. So in these slides, we are going to see how to master behavioral and technical interviews. Okay. So uh, we will start by behavioral interviews, means how to crack behavioral interviews as well as how to crack technical interviews as well. Okay. So guys, interview are not exams. Okay, they are conversation about your thinkings, means how you think, how you act. Okay, they are not exams, but they are everything what you think, how you converse. Okay, how you behave, how you act. Fine. It's nothing about knowing all the answers, it's about showing how you think, how you solve your problems. Okay, means company don't expect you to know everything, means you should answer everything, it's not mandatory, but instead they want how you understand, how you react to the problems, how you act on some solutions, as well as how you react when you have pressure as well. Okay, so uh, organization don't expect you to know everything, or they don't expect about knowing all the answers. It's also about showing how you think. Instead they want you to know how you understand or how you react. Okay, how you solve problem, as well as how you react under pressure, as well as how you work with others, as well as how you communicate your reasoning. Fine, means it's all about your thinking as well as your behavior as well as your communication. So in this session we are going to break down this session into two major types of interview, that are first one is behavioral interview and second one is technical interview. So before starting, let me introduce myself Sakshi, a technical instructor at Technobrilliant Learning Solutions. Okay, so let's start with behavioral interviews. What are behavioral interviews? Means they are the interviews which check your soft skills as well as your real life experience. Okay, and what are technical interviews? They are the interviews which check your problem solving skills, your fundamentals, as well as your coding skills if you're computer science student or IT student. So the first one is, what is behavioral interview? Okay, behavioral interview focused on your past behaviors or your past experiences. Okay, how you behave in the past is a strong indicator of how you will be behavior, how your behavior will be in present. Okay, they just focus on how you behave in your past, means how you act to your problems, how you faced your experiences in your past life. Okay, so on that, that is the indicator for them that how you will be behave, how your behavior will be in present or future. Okay, so it helps predict how you will be how your behavior will be in future situations, as well as these interviews are used to check your teamwork. Means this behavior interview, these are scheduled only to check your teamwork, your leadership qualities, how you handle pressure, as well as your communication skills, as well as how you manage conflicts, and how you solve problem or your problem solving style. Okay, it is used to access soft skills like teamwork, leadership, communication, and problems common in structured job interviews. Okay, so for checking these all, they often use phrases like tell me about a time when. इट मीन्स वो कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपको जिसकी वजह से उनको समझ आएगा कि आपने अपना टाइम कैसे बिताया था पास्ट में। मीन्स आप स्टक हो गए थे कोई सिचुएशन पे, या आपने गिव अप कर दिया था, या आपने अच्छे से वो सिचुएशन को फेस किया था पास्ट में। ऐसे कुछ चीजों से वो क्या करते हैं, आपके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं, या फिर आपकी फ्यूचर, इट इज द बेस्ट इंडिकेटर और स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर अबाउट योर फ्यूचर प्रेडिक्शंस। Okay, so
वो कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपको, टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू हैंडल अ डिफिकल्ट टीम मेंबर्स। अगर कुछ ऐसे टीम मेंबर्स है जो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते रहते हैं या फिर कुछ बहसबाजी करते हैं, तो ऐसे टीम मेंबर्स को आप कैसे हैंडल करते हो, ये सिचुएशन बताओ। जब आप आंसर दोगे कि फिर मैंने नहीं उनको अच्छे से समझाया, फिर समझाने के बाद उनसे वो चीज करवा ली, फिर उसके बाद मैंने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को एक पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ हैंडल करके सब कुछ सॉर्ट आउट करके एक रेगुलर बेसिस पे टीम वर्क स्टार्ट किया। फिर इससे क्या होगा, उनको समझ आएगा कि नहीं आपको मीन्स आता है टीम वर्क, या फिर आप में लीडरशिप क्वालिटीज है, आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, या फिर आप बोलोगे कि नहीं मुझे मेरे से नहीं हुआ वो और मैंने क्या किया, गिव अप कर दिया। तो ऐसा नहीं होगा, फिर उन लोगों को क्या लगेगा कि नहीं his means your past experience was not good, so you might be major challenging for them in future. Okay. और भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको, जैसे कि डिस्क्राइब अ सिचुएशन, ऐसे कुछ पूछा जाएगा कि डिस्क्राइब अ सिचुएशन वेयर यू वर स्ट्रक अंडर डेडलाइन, सो हाउ हैव यू फेस दैट प्रॉब्लम और हाउ हैव यू सबमिटेड योर वर्कलोड अंडर डेडलाइन। आप इसमें बता सकते हो कि आई हैव वर्क डे एंड नाइट, आई हैव वर्क मीन्स मैंने कुछ ऐसा किया कि जिसकी वजह से मैंने डेडलाइन क्रैक की और डेडलाइन के पहले ही अपना वर्क सारा सबमिट किया, मीन्स दे अंडरस्टैंड दैट यू कैन वर्क अंडर प्रेशर। ओके। एंड ऐसा कुछ पूछा जा सकता है आपको कि गिव एन एग्जांपल ऑफ, ऐसा कुछ एग्जांपल दो कि जिसमें मीन्स जिसमें आपने टीम लीड की हो या फिर जिसमें आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया हो, ऐसा कुछ पूछ सकते हैं आपको, मीन्स आपकी लीडरशिप क्वालिटीज जानने के लिए या फिर आपका टीम वर्क जानने के लिए। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। वो ये सब क्यों पूछते हैं, क्योंकि दे वांट टू नो दैट, उन लोगों को जानना होता है कि आप कैसे वर्कआउट करोगे उनके लिए। ठीक है। The best method to give the answer is by introducing star method or by using star methods in your uh, interviews or when you answer the question. So whenever you are answering the behavioral questions, the best structure is star method. कभी भी आप अगर आंसर दे रहे हो बिहेवियरल इंटरव्यू का, तो पहले आप सिचुएशन इंडिकेट करो, स्टार मेथड से जाओ। तो स्टार क्या एब्रिवेट करता है, सिचुएशन, एस एब्रिवेट्स सिचुएशन, टी एब्रिवेट्स टास्क, ए एब्रिवेट्स एक्शन एंड आर एब्रिवेट्स रिजल्ट। ओके। आप आंसर जब दोगे तो क्या करो, एक एक स्टार वाइज आंसर दो। इट मीन्स पहले सिचुएशन डिस्क्राइब करो, फिर आपको क्या टास्क अलॉट हुई थी वो डिस्क्राइब करो, उसके बाद आपने क्या एक्शन लिया वो डिस्क्राइब करो, और उसके बाद कैसा रिजल्ट आया, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, जो भी रिजल्ट आया है वो डिस्क्राइब करो। पॉसिबली पॉजिटिव रिजल्ट डिस्क्राइब करने की कोशिश करना, निगेटिव नहीं। इट विल बी बैड इम्पैक्ट इफ यू आर डिस्क्राइबिंग योर निगेटिव रिजल्ट। ओके। फर्स्ट सिचुएशन, सिचुएशन मीन्स नॉर्मल आपका बैकग्राउंड और कंटेक्स्ट, जो आपने भी फेस किया होगा, जो भी चीजें आपने फेस की होगी उसका बैकग्राउंड या तो फिर कंटेक्स्ट आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। सपोज मैं एक कंटेक्स्ट बताती हूँ आपको, जैसे सपोज in last year our project team have submitted a web application within 1 week. Okay, what is the situation, मुझे क्या करना है, मैं लास्ट ईयर में हूँ और मुझे क्या करना है, एक टास्क अलॉट हुआ है, दैट इज आई हैव टू सबमिट, मींस आवर टीम हैव टू सबमिट अ वेब एप्लीकेशन विद इन दी वीक। एक वीक में एक वेब एप्लीकेशन सबमिट करना है हमारे टीम को। नेक्स्ट ही सिचुएशन है, नेक्स्ट अभी क्या होगा, हम उस पर टास्क देखेंगे, चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टीम मेंबर्स को कैसे अलॉट होगी। ओके, सो व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू शुड डिस्क्राइब दैट। आपने सिचुएशन बता दी है कि लास्ट सेमेस्टर है और लास्ट सेमेस्टर में हमको प्रोजेक्ट अलॉट हुआ है और हमारी टीम को क्या करना है, एक वेब एप्लीकेशन सबमिट करना है विद इन पर्टिकुलर वीक। देन व्हाट इज योर टास्क,
व्हाट वाज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप वो डिस्क्राइब करो। जो चैलेंजेस आपको फेस करने हैं या फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अलॉट हुई है, बस आप वही डिस्क्राइब करना चाहिए। ओके, सो मैं ऐसा बताऊंगी कि आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैक एंड इंटीग्रेशन। ओके, ये मेरा टास्क था कि आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैक एंड इंटीग्रेशन। फिर जब मैंने टास्क कंप्लीट, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली या फिर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉट हुई, उसके बाद मैंने क्या किया, एक्शन लेने का सोचा। ओके, देन व्हाट यू डिड। ओके, जब आप एक्शन बता रहे हो या फिर टास्क बता रहे हो गाइस, तो क्या करना है, आपके टीम का टास्क नहीं बताना है। आपके टीम को क्या अलॉट हुआ है या फिर आपको आपके कॉलेज को क्या अलॉट हुआ है, इट डजेंट मैटर। व्हाट यू हैव डन, यू हैव टू इंट्रोड्यूस ओनली दैट। अगर आप बाकी चीजें बताओगे अपना खुद का छोड़कर, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि आप घुमा रहे हो उनको। ठीक है, सो जस्ट स्पीक अबाउट योर सेल्फ ओनली, introduce that situation along yourself only. So in that action, मैं action में बताऊंगी कि I have break down the integration work into smaller modules and conducted quick scan meeting. Okay, मैंने क्या किया, प्रोजेक्ट को, जो मुझे इंटीग्रेशन पार्ट आया था, मैंने क्या, मुझे क्या टास्क मिला था, मेरे को, मुझे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉट हुई थी, दैट आई वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैक एंड इंटीग्रेशन। तो मैंने क्या किया एक्शन में, व्हाट आई हैव डिड, आई हैव ब्रोकन डाउन द इंटीग्रेशन वर्क इनटू स्मॉलर मॉड्यूल्स एंड कंडक्टेड अ क्विक मीटिंग। तो गाइस, इससे क्या होगा, ये मेरी एक्शन थी, मैंने एक क्विक मीटिंग लिया, उसके बाद मैंने मॉड्यूल्स में डिवाइड किया, फिर मैंने वर्क इंटीग्रेशन स्टार्ट किया। नाउ रिजल्ट तो बताना होगा कि व्हाट हैपेंड एट द एंड, आखिर में क्या आउटपुट आ रहा है, या तो आपने क्या सीखा ये सारी चीजों में। तो आपका आउटकम बताना होगा कि व्हाट वाज द आउटकम, व्हाट वाज द रिजल्ट। तो आई विल से दैट वी हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम with zero merge conflict and sorry I have learned how to arrange startup meetings, okay, with improved collaboration. मैंने क्या आउटकम क्या आया इसका, what was the outcome, that we have completed the project on time with zero merge conflict. एक बिना एक भी कॉन्फ्लिक्ट के, बिना एक भी बहस के हमने क्या किया, अच्छे से प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया विद इन दी डेडलाइन। ओके, एंड व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस, आई लर्न हाउ टू शॉर्ट स्टैंड मीटिंग्स विद इम्प्रूव्ड कोलैबोरेशन। एक अच्छे टीम वर्क के साथ, एक अच्छे लीडरशिप के साथ हमने क्या किया, क्या सीखा कि मीटिंग्स कैसे अरेंज करना, कोलैबोरेट कैसे करना। ओके, सो गाइस, जब भी आप आंसर करोगे, ओके, जब भी आप बिहेवियरल क्वेश्चंस के आंसर करोगे, सो पहले इट्स बेस्ट वे टू डिस्क्राइब आंसर्स यूजिंग योर स्टार मेथड्स। ओके, सो पहले सिचुएशन डिफाइन करो, फिर टास्क डिफाइन करो, फिर एक्शन डिफाइन करो, फिर रिजल्ट डिफाइन करो। ठीक है, सो सिचुएशन में देखो, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। सिचुएशन में मैंने क्या बोला कि मेरा लास्ट ईयर का प्रोजेक्ट था and our team had to submit a web application within the week. Then my responsibility was that I was responsible for backend integration. Then in the action what I have did, I have broken down the integrated work within smaller modules and conducted a quick scan meeting. And the outcome was that we completed the project on time with zero merge conflict, and I learned how to short stand-up meetings with improved collaboration. Okay, so this is the best way for answering behavioral interviews. Now, let's see what is technical interviews. Okay, so behavioral interviews हमने देखे कि कैसे आंसर करना है, क्या चीज के लिए यूज होता है, उसका पर्पस क्या है, क्यों ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियरल इंटरव्यू कंडक्ट करती है। ठीक है, सो अभी हम देखते हैं टेक्निकल इंटरव्यूज कि टेक्निकल इंटरव्यूज क्या आता है। सो गाइस, हम टेक्निकल इंटरव्यूज नॉर्मली यहाँ पे आईटी रिलेटेड देखेंगे। ओके, सो पहले हम देखते हैं कि टेक्निकल इंटरव्यू का पर्पस क्या होता है। ओके, और उसको फॉर्मेट कैसे किया जाता है, या फिर हम कैसे उसको फॉर्मेट करके रिप्लाई देना चाहिए।
So normally technical interviews क्या चीज के लिए यूज होते हैं? They only check whether you can apply your technical knowledge to solve real world problems. टेक्निकल नॉलेज अप्लाई करके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो क्या? बस इतना चेक करने के लिए आपके टेक्निकल इंटरव्यूज लिए जाते हैं. The goal isn't to test memory, it's to test. आपकी मेमोरी टेस्ट करने के लिए नहीं यूज होते हैं टेक्निकल इंटरव्यूज. It's only to test your logical thinking, your problem solving attitude, as well as your conceptual clarity, as well as your ability to write clean and efficient code. ठीक है. नॉर्मली 4 चीजें टेस्ट करने के लिए आपके इंटरव्यू टेक्निकल इंटरव्यू शेड्यूल किए जाते हैं. फर्स्ट इज दैट आपके लॉजिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए. ओके, मीन्स आपकी लॉजिकल थिंकिंग कैसी है वो चेक करने के लिए द गोल इज टू assess problem solving ability, your fundamental knowledge, as well as your goal readiness. Okay, so जैसे मैंने आपको बोला कि 4 चीजों के लिए सिर्फ गोल क्या होता है उन लोगों का, टेक्निकल इंटरव्यू क्यों शेड्यूल करते हैं वो लोग. Their goal is not to test your memory, कि आपकी मेमोरी कैसी है, आप कैसे वर्क कर सकते हो. Nothing more than that. They only just want to know, उनको बस ये जानना होता है कि आप लॉजिकली कैसे थिंक करते हो, या फिर आप प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करोगे अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो. उसके बाद आप कंसेप्चुअली कितने क्लियर हो, आपको कंसेप्ट्स कितने पता है, और आपकी एबिलिटी टेस्ट करते हैं आप कितना क्लीन नीट टाइडी कोड लिखोगे विथ efficientness. Okay, then अभी फॉर्मेट क्या इंक्लूड होगा. आप टेक्निकल इंटरव्यूज के लिए जाओगे तो टेक्निकल इंटरव्यूज शेड्यूल होने के बाद आपका क्या फॉर्मेट रहेगा, आपको किस फॉर्मेट में आपके इंटरव्यूज लिए जाएंगे. तो फर्स्ट वन इज दे गिव यू कोडिंग चैलेंजेस. ओके, वो पहले आपको क्या करेंगे, कोडिंग चैलेंजेस देंगे. वो कोडिंग चैलेंजेस आपको क्या करने होंगे, लिखने होंगे, या फिर कुछ टेस्ट केसेस होती है, जैसे कुछ टेस्ट में कुछ कोडिंग चैलेंजेस में 10 टेस्ट केसेस होती है, कुछ में 15 होती है. तो आपको क्या करना होता है, उनके सैंपल आउटपुट के साथ एक्सपेक्टेड आउटपुट को मैच करना होता है. और दोनों मैच हो जाएंगे तो आपके क्या होगा, सारे टेस्ट केसेस इवैल्यूएट हो जाएंगे. मींस दे विल बी नोइंग दैट यू आर एलिजिबल टू कोड, as well as your code is more efficient, as well as you're conceptually clear. Next, केस स्टडीज और मार्केटिंग सिनेरियोस चेक करते हैं. मींस आपका बिजनेस और टेक्निकल सिनेरियोस चेक करते हैं. ओके, उसमें सेकंड राउंड में कभी कभी वो आपको जीडी राउंड्स भी ले सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन राउंड्स. ठीक है, फिर व्हाइट बोर्ड और लाइव एक्सरसाइजेस आपको दे सकते हैं. मींस लाइव प्रॉब्लम क्वेश्चंस दे सकते हैं. तो आपको पूछा जाएगा कि अगर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हुआ या फिर ऐसे प्रॉब्लम आई तो उसको आप कैसे हैंडल करोगे, तो आप कैसे सॉल्व करोगे. ठीक है, उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक टेक्निकल क्वेश्चंस दे सकते हैं आपको. जैसे अगर आप मार्केटिंग फील्ड से हो तो मार्केटिंग के, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से हो तो इंजीनियरिंग के, या फिर आप कॉमर्स फील्ड से हो तो कॉमर्स के. मींस इट इज only to test that you are conceptually clear or not. ठीक है, so different role requires different skill set. अगर आप इंजीनियरिंग के हो और आप कॉमर्स की चीजें पूछे तो आपको नहीं बताते आएगी, या तो कॉमर्स के स्टूडेंट को इंजीनियरिंग की चीजें पूछी जाएगी तो उसको नहीं बताते आएगी. सो डिफरेंट रोल रिक्वायर्स डिफरेंट स्किल सेट. अगर मार्केटिंग का इंटरव्यू है, सो अ मार्केटिंग इंटरव्यू विल फोकस ऑन एनालिटिक्स और कस्टमर बिहेवियर. अगर मार्केटिंग का इंटरव्यू है तो वो मार्केटिंग का इंटरव्यू फोकस होगा एनालिटिक्स फॉर कस्टमर बिहेवियर को. while if suppose CS role will be focused on algorithm, data structures and system requirements. फाइन. अगर CS रोल है, कंप्यूटर साइंस वाला कैंडिडेट है, तो उसको उसका इंटरव्यू
तरह से शेड्यूल होगा। डोमेन स्पेसिफिक कैसे पूछेंगे उसको, या तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पूछेंगे, या तो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स पूछेंगे, या तो उसको कंप्यूटर नेटवर्क्स पूछेंगे, या तो ऑपरेटिंग सिस्टम पूछेंगे, या तो डीबीएमएस पूछेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट। ओके, सो इंटरव्यू अपने रोल के हिसाब से, अपने माइंडसेट स्किल सेट के हिसाब से डिफरेंट होता है। डिफरेंट रोल रिक्वायर डिफरेंट स्किल सेट्स। ओके, नेक्स्ट, इंटरव्यूज मीन्स अगर सपोज जैसे अभी मैंने बोला कि रोल बाय रोल इंटरव्यू वैरी होता है। कॉमर्स वाले का इंटरव्यू अलग होगा, मार्केटिंग वाले का अलग होगा, और इंजीनियरिंग वाले का अलग होगा। सो अभी हम ये स्लाइड्स में देखते हैं कि सीएस टेक्निकल इंटरव्यूज क्या होते हैं, या तो उनको कैसे क्रैक किया जाए। ओके, सो when it comes to CS or computer science role specifically, the expectations are more defined and structures. CS वालों के इंटरव्यूज बहुत स्ट्रिक्टली होते हैं एज कम्पेयर टू कॉमर्स एंड मार्केटिंग। सो द एक्सपेक्टेशंस आर मोर डिफाइंड एंड स्ट्रक्चर्स। आप जितना ज्यादा सही से आंसर दोगे उतने आपके प्लस पॉइंट्स होंगे। ठीक है, सो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इसका, दैट to evaluate your problem solving ability, your coding skills and your fundamental knowledge of CS. ओके, नॉर्मली क्या करेंगे वो, तीन चीजें ही चेक करेंगे। आपके कोडिंग स्किल्स चेक करेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को चेक करेंगे, और फंडामेंटल नॉलेज को चेक करेंगे आपके ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो इसके लिए कॉमन फॉर्मेट्स क्या होते हैं। कॉमन फॉर्मेट पहले तो आपकी ऑनलाइन टेस्ट ली जाती है। ये गाइस आपको पता भी होगा अगर आपने इंटरव्यूज दिए होंगे तो। पहले स्टेप बाय स्टेप इंटरव्यू शेड्यूल होता है। पहले क्या करते हैं वो लोग, ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट होती है। ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट इट इज टाइम टेस्ट ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। वहां पे टाइमर लगा होता है, उतने टाइम में आपको क्या करना होता है, वो कोडिंग में वो कोड करना होता है जहाँ उनके स्टेटमेंट के हिसाब से। और जैसे आप कोड करोगे वैसे क्या होगा, आपको टेस्ट केसेस रन करके देखनी होगी वो कोड की। अगर आपके सारे टेस्ट केसेस रन हो गए, सो यू विल बी एलिजिबल फॉर नेक्स्ट राउंड। सो वो टाइम टेस्ट होती है, कुछ स्पेसिफिक टाइम होता है, जैसे 30 मिनट्स 60 मिनट्स, ऐसे कुछ टाइम स्पेसिफाइड होता है। वो स्पेसिफिक टाइम में आपको क्या करना होता है, वो टेस्ट सॉर्ट करनी होती है या फिर सॉल्व करनी होती है। सो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे होती है, जैसे कि हैकर रैंक हुआ, कोडिलेटिव हुआ। और इसमें क्या होता है गाइस, कैमरा माइक्रोफोन सब कुछ ऑन होता है। दे जस्ट चेक कि आप कितने प्रॉम्प्ट हो या फिर आप कितने पंक्चुअली वो टेस्ट सॉल्व कर रहे हो। नेक्स्ट इज दैट योर इन पर्सन प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटरव्यू। मतलब वो आपको क्या करेंगे, लॉजिक स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने लगाएंगे कि आपने कैसे सॉल्व किया है। ओके, फिर नेक्स्ट राउंड इज योर architectural questions or system design questions. System design questions, it is usually taken for senior और back end roles. Okay, अगर आप back end development के लिए जा रहे हो या फिर आप already working हो senior roles के लिए जा रहे हो, तब आपको system design questions या फिर architectural questions पूछे जाते हैं। Next, technical question and answers on CS subjects. आपको कुछ आपकी जो नॉर्मल स्किल्स है, मीन्स आपका जो कंसेप्ट थे, जैसे आपने इंजीनियरिंग की या फिर बीटेक जो भी किया हो, उसमें सीएस ब्रांच से आपने इंजीनियरिंग पास आउट की, और उसके बाद में आपको क्या पूछा जाएगा, मीन्स उसमें आपको कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे ओएस हुआ, डीबीएमएस हुआ, डीएसए हुआ, सीएन हुआ। ओके, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटाबेस मैनेजमेंट, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। सो गाइस, इस पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जस्ट टू चेक कि आप कितना रिमाइंड कर पा रहे हो या फिर आप कितने कंसेप्चुअली क्लियर हो। ठीक है, नेक्स्ट दे विल डिस्कस अबाउट योर पास्ट प्रोजेक्ट। ओके, जो भी आपने फाइनल ईयर में अभी अभी पास आउट हो, तो जो भी आपने फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट किया होगा उस पर डिस्कस करेंगे, या फिर जो जिस पे आप अभी वर्किंग हो उस पर डिस्कस करेंगे, या फिर आपने कभी फ्रीलांसिंग की हो तो फ्रीलांसिंग में जो प्रोजेक्ट किया हो उस पर कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, सो
कुछ क्वेश्चंस आपको उसमें ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि आपने यही स्टैक क्यों यूज किया। अगर आपने बोला कि मैंने प्रोजेक्ट फुल स्टैक जावा में किया है, तो फिर आपने यही क्यों यूज किया, आपने फुल स्टैक पाइथन या फिर डॉटनेट क्यों यूज नहीं किया, फिर ये आर्किटेक्चर आपने क्यों यूज किया, आप तो कुछ अलग भी यूज कर सकते थे। सो दे जस्ट क्रॉस क्वेश्चन यू एंड यू माइट बी कैपेबल ऑफ आंसरिंग देयर क्वेश्चंस। ओके, आपने ऐसा क्यों किया, इसका आंसर आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट देखो गाइस, जब जो इंटरव्यू लेता है ना, वो इंटरव्यूअर दे आर जस्ट केयरलेस अबाउट सिंटैक्स एंड मोर अबाउट योर मीन्स हाउ यू broke down that problem, where you where means whether you have solution। ओके, आपके पास कुछ इफिशिएंट सॉल्यूशन है कि नहीं, आप कैसे थिंक करते हो, आप कितना क्लियर और कम्युनिकेट अच्छे से कर रहे हो, ये टेक्निकल इंटरव्यू में नहीं देखा जाता है। ओके ओके, आपका कम्युनिकेशन या फिर आपकी थिंकिंग या फिर आपका कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट या फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग जो भी है स्किल्स, ये टेक्निकल इंटरव्यू में इतना मायने नहीं रखता है। दे जस्ट वांट टू नो कि आप कितने टेक्निकली साउंड हो। ओके, सो नेक्स्ट लेट्स सी what should be included in your presentation। अगर आप खुद को प्रेजेंट करना चाह रहे हो या फिर आप इंटरव्यू में जा रहे हो टेक्निकल, सो आपने खुद को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, what should be included in your presentation। so suppose good interview preparation is not random, it's to be structured। okay, आप ऐसे बोलोगे कि नहीं मेरे से एक इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ, इसमें कुछ तो गड़बड़ हुई थी, तो फिर मैं क्या करूंगा नेक्स्ट इंटरव्यू में बस उसी को सॉल्व करूंगा या फिर उसी को ओवरकम करूंगा। ऐसे नहीं होता है गाइस। जो अच्छे इंटरव्यूज होते हैं, जो गुड इंटरव्यूज होते हैं, दे आर नॉट रैंडम। ओके, वो क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं जिनके इंटरव्यूज बहुत अच्छे से होते हैं या फिर एक फर्स्ट इंटरव्यू में वो लोग क्रैक कर लेते हैं बड़ा सा पैकेज, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, बहुत मेहनत लेते हैं फॉर शेड्यूलिंग देयर इंटरव्यूज और फॉर प्रिपरेशन ऑफ देयर इंटरव्यूज। ओके, सो फर्स्ट वन इज, जब आप टेक्निकल इंटरव्यूज के लिए जा रहे हो तो आपको कोर सीएस फंडामेंटल्स पता होना चाहिए। ओके, अगर आप टेक्निकल प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर टेक्निकल इंटरव्यूज के लिए जा रहे हो तो आपको कोर सीएस फंडामेंटल्स पता होना चाहिए। कोर सीएस फंडामेंटल्स में आपको कुछ टॉपिक पता होना चाहिए दैट आई विल मेंशन नाउ। जैसे पहला होगा डेटा स्ट्रक्चर्स। इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू नो डेटा स्ट्रक्चर। जब आप टेक्निकल इंटरव्यूज के लिए जाओगे सीएस बैकग्राउंड से, तो फर्स्ट आपको डेटा स्ट्रक्चर्स पता होना चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स में कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे एरेज हुआ, स्टैक्स हुआ, लिंक लिस्ट हुआ, क्यू हुआ, ट्री, ग्राफ, ये कुछ टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए या फिर आपको इम्प्लीमेंट करते आना चाहिए व्हेन यू आर गोइंग फॉर core CS from core CS branch for your technical interview। सेकेंड, डेटा स्ट्रक्चर्स में आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। सेकेंड, एल्गोरिदम्स में आपको सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स पता होना चाहिए, सर्चिंग एल्गोरिदम्स पता होना चाहिए, उसके बाद डीपी पता होना चाहिए। फिर रहा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको प्रोसेसेस क्या होती है, थ्रेड्स क्या होते हैं, शेड्यूलिंग्स क्या होते हैं, ये सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट अबाउट डेटाबेसेस। डेटाबेसेस में इंडेक्सिंग क्या होती है, एसक्यूएल कैसे वर्क करता है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको डेटाबेसेस में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट रहा नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल कैसे वर्क करता है, उसका वर्किंग क्या है, वो क्यों डिजाइन किया गया है, ओएसआई मॉडल कैसे वर्क करता है, या फिर एचटीटीपी के कुछ बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, these basics never change, so mastering themselves gives you long term confidence। okay, ये जो भी मैंने आपको बताया, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, नेटवर्किंग, इसके बेसिक्स चेंज नहीं होने वाले हैं।
सो अगर आप वो मास्टर करके रखते हो या फिर उसमें इम्प्रूव करते हो तो क्या होगा, इट विल गिव यू लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस. नेक्स्ट इज दैट, सेकंड वन इज प्रैक्टिस कोडिंग. अगर आप टेक्निकली भी साउंड हो लेकिन आपको अगर कोड करते नहीं आ रहा है तो टेक्निकल इंटरव्यू विल बी लॉस्ट. योर टेक्निकल इंटरव्यू विल बी लॉस्ट. टेक्निकल इंटरव्यूज रिक्वायर्स हैंड्स ऑन कोडिंग एक्सपीरियंस. आपके पास हैंड्स ऑन कोडिंग होनी चाहिए. मतलब आपको बोला कुछ, नॉर्मली तो फ्रेशर्स के लिए प्राइम नंबर, पैलेंड्रोम, ये सारे जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स है यही करने लगाते हैं. सो कुछ कुछ इंटरव्यूज में आपको स्ट्रिंग रिवर्स या फिर ऐसे कुछ प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करने लगाते हैं इन फ्रंट ऑफ देम. एंड इफ यू कांट then no guys, you can't crack the interview. Okay, so solve problems regularly on the platforms like lead code or gfg, geeks for geeks. Okay, don't just solve, understand patterns. एक बार आप, मतलब आप बस सॉल्व मत करो, रट्टा मत मारो, एक बार आप पैटर्न समझ लो. जैसे अभी पैलेंड्रोम का प्रोग्राम है तो पैलेंड्रोम के प्रोग्राम में क्या करना है आपको, जस्ट यू हैव टू चेक इफ द स्ट्रिंग और नंबर इज पैलेंड्रोम और नॉट. ठीक है, सो एक बार पैटर्न समझ लो. अभी सपोज पैटर्न प्रिंटिंग का प्रोग्राम है, आपको पिरामिड प्रिंट करना है तो पिरामिड प्रिंट करने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी वो देखो. उसके बाद आपको सपोज कहाँ पे स्टार्स प्रिंट करने हैं वो देखो. मीन्स उसके बाद क्या होगा, आपको समझ आएगा कि why I have implemented this. बस कोड करने से नहीं होगा, you have to understand that pattern too. Then सिस्टम डिजाइन के बेसिक्स जानो. अगर आप सीनियर रोल के लिए जा रहे हो या फिर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, नॉट ओनली एक्सपीरियंस गाइज, मैं तो बोलूंगी इवन बिगिनर शुड नो बेसिक्स लाइक हम लोग को हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड बैलेंसिंग, उसके बाद कैशिंग, स्केलेबिलिटी, रिडंडेंसी, ये सारे पॉइंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हमको हुए हैं. सो हमने क्या करना चाहिए, सीनियर रोल के लिए अगर जा रहे हो तो आपको तो पता ही पता होना चाहिए. बट इफ यू आर फ्रेशर, अगर आप बिगिनर हो तो भी आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए. नेक्स्ट, योर कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर मोस्ट. आप कैसे लॉजिक को एक्सप्लेन कर रहे हो या फिर आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग लेवल है, आपका जो वे है लॉजिक को एक्सप्लेन करने का वो कितना सॉफ्ट है, ये सब आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में देखा जाएगा. ओके, सो अभी हमने देखा कि क्या इंक्लूड होना चाहिए. नाउ लेट्स सी व्हाट यू शुड नॉट बी इंक्लूडिंग इन योर इंटरव्यू. Okay, first one is tool symmetric over preparation. You should not include. मतलब don't spend too much time learning every tool like Docker, AWS. ये जो tools है ये पढ़ने में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो. ओवर प्रिपरेशन डोंट डू. ओके, टूल्स को चेंज करो, ओनली फंडामेंटल्स पे रुको. अगर आप फ्रेशर्स हो तो फंडामेंटल्स तक ही रुको और फंडामेंटल्स को ही अच्छे से प्रिपेयर करो. ओके, डेटा स्ट्रक्चर इज टू मच वास्ट कंसेप्ट. अगर आप वो करोगे नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, इतने में तो आप मतलब थक जाओगे. सो डोंट गो टुवर्ड्स द वास्ट कंसेप्ट्स लाइक डॉकर, जेनकिंस, एडब्ल्यूएस वगैरह, जेसीपी, इनके साइड मत जाओ. ओके, नेक्स्ट, ओवरले टेक्निकल कंटेंट. थेराटिकल कंटेंट को ओवरले करो. ओके, यू शुड मेमोराइज डेफिनेशन वोंट हेल्प. जो आप डेफिनेशन मेमोराइज करोगे, ओके, जैसे कुछ डेफिनेशंस होती है वो आप अगर मेमोराइज करोगे तो क्या होगा, इंटरव्यूअर वांट्स प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग नॉट योर थेराटिकल नॉलेज. ओके, आपको थ्योरी नॉलेज कितना है इससे उसको कोई लेना देना नहीं होता है. ओके, he or she just check what is your practical understanding about that particular concept. Next and the most important, resume dumping.
ओके, रिज्यूम डंपिंग मतलब क्या? डोंट फिल योर रिज्यूम विदाउट एवरीथिंग डोंट सॉरी डोंट फिल योर रिज्यूम विथ एवरीथिंग यू हैव एवर डन। आपने जो चीजें की ही नहीं है, ऐसी चीजों से रिज्यूम फिल मत करो। वहां पकड़े जाने के बहुत से चांसेस होते हैं, बिकॉज इंटरव्यूअर फोकसेस ऑन दैट थिंग्स ओनली। फोकस ऑन 2 to 3 स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स विथ रियल डेप्थ। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं और सारे रिज्यूम में बस प्रोजेक्ट्स ही प्रोजेक्ट डालना है, ऐसा नहीं। 2 से 3 प्रोजेक्ट जो बहुत अच्छे हैं, इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, इंडस्ट्री लेवल के हैं, कुछ मीन्स आगे वाले को भी कुछ काम आ सकते हैं वो प्रोजेक्ट, ऐसे प्रोजेक्ट आपको क्या करने हैं वो रिज्यूम में पूरे डेप्थ के साथ, पूरे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ आपको क्या करना है, रिज्यूम में डालना है। ओके, मेमोराइजिंग आंसर्स, नो। अगर आप आंसर्स मेमोराइज कर रहे हो, सो इंटरव्यूअर कैन इजीली डिटेक्ट रिफ्रेश्ड रिस्पॉन्सेस। अगर आप रिवाइज करते करते बता रहे हो, इट्स नॉट योर थ्योरी पेपर, इट्स व्हाट यू कैन स्पीक, it's what you can act, it's what you can behave, it's what you can answer clearly. Okay, so authentic structured answers are far more impressive. जो आपको बोलते आ रहा है इन सिंगल शॉट बस उतना ही बोलो, डोंट मेमोराइज द आंसर्स। नेक्स्ट, लेट्स सी। फिर ये सब प्रिपेयर करने के लिए अभी हमने देखा कि कैसे, क्यों प्रिपेयर करना चाहिए, किस लिए प्रिपेयर करना चाहिए, यूज क्या होता है, इंक्लूड क्या करना चाहिए टेक्निकल इंटरव्यू में, उसके बाद क्या नहीं इंक्लूड करना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि रिसोर्सेस कहाँ से प्रिपेयर करना है अभी ये सब। ओके, सो देयर आर बेस्ट रिसोर्सेस यू कैन रिलाई ऑन। जैसे कोडिंग प्लेटफॉर्म से हमारे पास लीड कोड। ओके, लीड कोड have programs which have industry standards. Okay, जो इंडस्ट्री रिले करते हैं वही प्रोग्राम्स लीड कोड पे होते हैं, सो आप लीड कोड प्रेफर कर सकते हो। गिग फॉर गिग्स इज मोर इफिशिएंट फॉर ग्रेट एक्सप्लेनेशंस। अगर आप गिग फॉर गिग्स यूज कर रहे हो तो मोर एक्सप्लेनेशन या फिर बेस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए भी आप उसको रेफर कर सकते हो। कोड फोर्सेस इज यूज फॉर कॉम्पिटिटिव कोडिंग। अगर आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग करना चाहते हो, उसमें इंटरेस्ट है, तो आप वो भी कर सकते हो। एंड हैकर रैंक इज ए प्लेटफॉर्म, HackerRank is a coding platform as well as it is beginner friendly platform. आप वो प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। ये कोड फोर्सेस और लीड कोड का जो इंटरफेस है गाइस, वो थोड़ा पहले पहले समझने में हार्ड लगता है, बट HackerRank इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन प्रैक्टिस कोडिंग। नेक्स्ट, बुक्स और गाइड्स कौन से लेने चाहिए? फर्स्ट मैं बोलूंगी क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यूज। इट इज एक्सलेंट फॉर बिगिनर गाइज। आप ये बुक को प्रेफर कर सकते हो या फिर गाइडेंस ले सकते हो यहाँ से। एंड सेकंड वन इज एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग इंटरव्यू। इट इज मोर एडवांस देन क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू। ओके, जो पहली बुक मैंने यहाँ मेंशन की है, इससे थोड़ी एडवांस है ये एलिमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग इंटरव्यूज। देन लेट्स सी मॉक इंटरव्यूज कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। मॉक इंटरव्यूज प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास प्रैम्प बोल के एक वेबसाइट है। इट इज फ्री। प्रैम्प वेबसाइट मतलब फ्री इंटरव्यूज के लिए एक फ्री वेबसाइट है, वहां से आप मॉक इंटरव्यूज प्रिपेयर कर सकते हो। एंड नेक्स्ट वन इज interviewing.io विथ इंजीनियर्स। इट इज मॉक इंटरव्यू विथ रियल इंजीनियर्स। ये एक ऐसी मॉक इंटरव्यू की वेबसाइट है जहां पे आप you can interview yourself, you can give mock interview with real engineers. Next, CS topic to be reviewed. कौन कौन से टॉपिक रिव्यू करना चाहिए? देखो, फर्स्ट वन इज oops एंड डिजाइन पैटर्न्स, मतलब पैटर्न प्रिंटिंग के प्रोग्राम्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम्स मतलब प्रोसेसेस, थ्रेड्स और मेमोरीज,
के कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। फिर डेटाबेस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसमें इंडेक्सिंग और नॉर्मलाइजेशन, ट्रिगर्स, ऐसे कुछ कंसेप्ट्स है जो आपके क्लियर होने चाहिए। नेटवर्किंग में टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, ओएसआई मॉडल, उसके बाद एचटीटीपी, ये सारे जो बेसिक्स कंसेप्ट है ये सारे आपके, इट इज मोर मैंडेटरी, ये सब आपके क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए टू क्रैक योर सीएस टॉपिक्स, ओके, और सीएस इंटरव्यूज। The next and the final is that your final takeaways. In short, you should focus on problem solving, clarity, not just answering questions. आप उनके लिए कैसे बेनिफिशियल हो ये बताना है आपको, आप प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व कर पाओगे ये बताना है आपको। You should answer clearly, you should focus on clarity rather than answering just, okay? बस आंसर देने से कोई मतलब नहीं है गाइस, आप कितने क्लियरली वो चीज पे फोकस कर सक रहे हो, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को क्लियर बता सक रहे हो, सो इट इज मोर इम्पॉर्टेंट। इंटरव्यूअर्स cares more about your reasoning than your final code, okay? Explain your code like you're teaching it, okay? Talk through your thought process. This shows confidence and communication skills. ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं फिर भी कुछ भी बोले जा रहे हो, नहीं, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, और आपको कोड ऐसा एक्सप्लेन करना है जैसे आप उनको पढ़ा रहे हो। दिस शोज योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एज वेल एज योर कम्युनिकेशन। Practice 50 to 100 core coding problems. This build pattern recognition, the real secret of fast problem solving. Okay? ऐसे कुछ core मतलब जो भी बेसिक 550 to 100 प्रॉब्लम्स है वो आप क्या करो, प्रैक्टिस कर रखो। It's okay to not know. Okay? Be honest if you don't know. Show how you did approach it. अगर आपको पता नहीं है तो सीधे बोल दो कि मुझे पता नहीं है। डोंट रिलाई ऑन समथिंग एल्स व्हाट यू आर नॉट नोइंग, ओके? इफ यू आर स्ट्रक, कहीं आप अटक गए हो, एक्सप्रेस हाउ यू डिड अप्रोच दैट प्रॉब्लम, दिस शोज योर मैच्योरिटी एंड योर एनालिटिकल थिंकिंग। डोंट जस्ट स्पीक एनीथिंग और देयर। एंड ईच आंसर विथ अ ब्रीफ ट्रेड ऑफ और इनसाइट। कोई भी आंसर को एक सॉल्यूशन के साथ एंड करो। दिस सॉल्यूशन इज फास्ट बट यूजेस मोर मेमोरी। इट शोज यू अंडरस्टैंड द डीपर इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स, ओके? ऐसे कुछ आंसर करो कि उसके प्रोज भी बताओ और उसके कॉन्स भी बताओ, मतलब उन लोग को समझ आएगा कि आपके जो इंजीनियरिंग के कंसेप्ट है या फिर आपने जो अपने कॉलेज लाइफ में सीखा है, इट्स you know more about that, you have clear knowledge about that concepts, okay? So these are some of the final takeaways. Now let's wrap up over here, and the final outcome is that they don't just hire coders, they hire thinkers. Means आपकी कोडिंग भी अच्छी होनी चाहिए और आपकी थिंकिंग भी अच्छी होनी चाहिए। They don't just need coders, they also need thinkers, okay? So thank you, thanks for watching, bye bye.